चलता हूं। जनरल सूरी, you know, does Pakistan have a military? Yeah, Pranesh. ये तो मजाक है सर। See, Pranesh, it's so evident that bilkul, the Pakistan army is losing its relevance, and there is no doubt about it. And the way it is structured today, I think all their actions are pointing towards the fact that they are a failed military, and they are absolutely, I don't know how the gentleman from Pakistan said that he's giving a threat like this and we should be scared of the Pakistan army. I think it's absolutely the other way around. It is high time they started, going ballistic as far as the fear goes in terms of what the Indian might or the Indian state can do to Pakistan. And getting back to what Tuhin also said, I think, we really need to look at these Malays, firstly within and then also outside. No sane person inside our country should be able to, dilute or tone down this act of terrorism which has taken place. And anyone doing that, I, dare say, he is perhaps not looking at the best interests of our country. And he's not being perhaps a true patriot or a nationalist. And the second issue is to look beyond, wherein there is a whole ecosystem which tries to tone down such events when they happen in our country. When it happens in their own backyard, right, they are absolutely, gung-ho about it. And within, like you rightly said, within 2 minutes, the news is out that there is a terror attack, even if there's a knife-wielding gentleman. So that is something which we really need to. And we will call this, we will call out this hypocrisy, General Saab. But look, what I was saying has come true. Dr. Hussain, उनके घर पे बिजली चली गई है, ये हाल है वहां पे। और वो जो आईफोन यूज कर रहे थे जिससे वो लाइव आए थे, वो भी चाइनीज गिफ्ट है वो। अब कमार चीमा एकदम सतर्क बैठे हैं कि यहां पे बेइज्जती ना हो, लाइट ना जाए, तो उन्होंने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया हुआ है। अब मुझे पता नहीं, वन डजंट नो वेदर दिस इज इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग एल्स। Chris, I am sorry, I am breaking out in Hindi because of a Pakistani guest, but I can assure you that we are on the right track. Kamar Chima, what's going on, sir? आपके यहाँ लोग लाइन लगा रहे हैं वहां आटे दाल के लिए, और आप न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं। आपके मंत्री वहां जाके मान रहे हैं कि हाँ, हम 60 साल से 50 साल से टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं, हमको इसके पैसे मिलते हैं, फिर भी आप लोग आ जाते हैं डिफेंड करने। कुछ तो शर्म होनी चाहिए सर। पहले तो जरा आपकी हिंदी का जवाब दे लो। नहीं, वो उनके लिए था। नहीं, कमर चीमा, ये सवाल की आपने तैयारी की थी, इसीलिए सवाल अलग है आपका। वो आप इंग्लिश में बोले, वो हिंदी उनके लिए था। मैं फिल्बदी में जवाब देता हूं। लेट मी टेल यू, इंडियन जर्नलिस्ट आर द ओनली जर्नलिस्ट व्हेन दे स्पीक इंग्लिश, देयर इंग्लिश इज ट्रांसलेटेड इन द व्हाइट हाउस, एंड the Modi-Trump meeting, when the translator was translated. I know, sir. Pakistani media was kept out. They were not permitted beyond the lawns. Lawns के भी बाहर था पाकिस्तानी मीडिया. So let's not go there, sir. White House की बात आप मत कीजिए. आप इसकी बात कीजिए जो आप कर सकते हैं. आप उतनी दूर की बात क्यों कर रहे हैं कमर चीमा? Let's talk about basics. आप बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, पहले वो तो निपटा लो। भाई देखो, more than 800,000 Indians are illegal in USA. Americans are sending charter planes. वो जो आपके भूखे अमेरिका, यूरोप की सड़कों पे घूम रहे हैं, वहां पे चार्टर जहाजों पे उनको लाद के इंडिया भेज रहे हैं, और आप यहां पे जनरेटर जला के बड़े खुश हो रहे हैं। और उनका क्या करना है, जिनको आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जहाज में डाल के पांव में बेड़ियां डाल के चंडीगढ़, आप तो गुस्सा ही हो गए कमर चीमा। एक सवाल का जवाब दीजिए कमर चीमा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जो बोलते हैं हर शो में, जब भी आते हैं आप कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने ये कर दिया है। कौन सी जंग जीती है आप लोगों ने? बता दीजिए, साल बता दीजिए, या कोई किसी फ्रंट पे अगर जीती हो तो वो भी बता दीजिए सर। बता दीजिए। आप लोग सर गरीबी से तो जीत नहीं पा रहे हैं,
भूखमरी से नहीं जीत पा रहे हैं, आप जंग कहां से करेंगे? आप मुजाहिदीन को आर्मी फटीग्स में यहां भेज देते हैं। अभी हाथ मत जोड़िए, अभी ये लंबा चलेगा। कमर चीमा देखिए, ये लंबा चलेगा, अभी ये सुनना पड़ेगा आज, ऐसा मत कीजिए। मुझे ये बताइए कि जनरल मुनीर, उन्होंने और उनके पहले जितने लोग थे, किसने किसने सरेंडर किया आपको पता है? कौन सी जंग जीती है आपने? आप क्या ट्रेन हाईजैक हो जाता है? सर ये हाल है, ट्रेन हाईजैक। अब अगली नेटफ्लिक्स सीरीज उस पे बनेगी कि ट्रेन हाईजैक हो रहे हैं वहां पे। जंग सिर्फ नरेंद्र मोदी जीतते हैं। हाँ वो तो नहीं, वो तो जीतते हैं। देखिए डॉक्टर हुसैन के यहां से फोन आ रहा है कि हम आ नहीं पाएंगे। कमार चीमा, आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। आप सरेंडर भूल गए, बांग्लादेश में क्या हुआ? आप करगिल भूल गए। ये क्यों करते हैं आप जब आपसे संभलता नहीं है तो? आप ये जो आपको लगता है कि सिर्फ यहां पे चांद सितारे लगा लेने से कोई जनरल बन जाता है? बेटा मैं सरेंडर का जवाब देता हूं। तुम्हें पता है नरेंद्र मोदी पांव पड़ गया था कतर जाके, मेरे नॉन नेवी के जासूस छोड़ दो, वो था सरेंडर। सर जितने इस्लामिक देश हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी का सम्मान किया है। कमर चीमा पढ़ लीजिए आप। आपका जो ग्लोबल उम्मा है, ग्लोबल उम्मा, टर्की में जब मदद नहीं टर्की में जब अभी आफत आई थी तो भारत ने मदद किया था। बट आप बाकी देश भी देख लीजिए, सऊदी अरब, यूएई, आप सब देख लीजिए, सबने नरेंद्र मोदी को सलाम किया है और उनका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो दिया है। आप वो सब उधर ना जाए। कमर चीमा, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए आप एक मिनट, कमर चीमा एक मिनट, मुझे एक बात बताइए। जो पीछे आपने किताबें लगाई, सुनिए एक मिनट, किताबें जो लगाई हैं ये आपके जनरल अगर पढ़ लें तो अच्छा होगा, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। वो पहले मुजाहिदीन के साथ ट्रेनिंग लेते हैं और फिर जब वो जनरल बन जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तानियों को मुजाहिदीन बनाते हैं। यही साइकिल चलते रहता है, मुजाहिदीन मिलिट्री और मिलिट्री मुजाहिदीन। तो आप लोग जब आपके रक्षा मंत्री, वहां जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जब टीवी पे मान रहे हैं कि हाँ हम करते थे, ये टेररिज्म का काम हम करते हैं, तो आप लोग कैसे आके डिफेंड करते हैं? आप बताइए। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, एक बार सुनिए। कमर चीमा, ये सुनिए, आपके मंत्री को सुनिए। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की। चीमा साहब, एक आपके नेता हैं, पीएमएलएन के लीडर हैं अयाज सादिक। ख्वाजा साहब को तो आपने सुन लिया, अब आप सुनिए अयाज सादिक ने क्या कहा था। इन्होंने कहा पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने, खुदा का वास्ता इसको जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये जब वहां आपको पता है जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे, जब वो वहां उस तरफ गए थे तब ये हाल था आपका, और आप फिर बोल रहे हैं कि हमारी मिलिट्री ने ये किया है, नरेंद्र मोदी, आरएसएस। मैं आपको एक और चीज बता दूं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप वो वैसे बोलते रहते कमर चीमा, इट्स गुड टू बी 1 मिनट सर ऑन द रिसीविंग एंड समटाइम। सुनिए, पता नहीं उसके बाद अब कितने दिन रहेगा पाकिस्तान, बट आप सुनिए। जब टर्की में आप लोगों ने भी देखा देखी भेजा कि हम भी फॉरेन एड भेजेंगे, आपने क्या किया? जो चाइनीज एक्सपायर्ड गुड्स थे जो आपको दहेज में मिलते हैं वो भेज दिया आपने, एक्सपायर्ड सामान भेज दिया था आपने, फॉरेन रिलीफ। और ये जितने भी आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं वो भी आपको सब डोनेशन में है, गिफ्ट है। अब अगला बस यही बचा है कि हाफिज सईद, उसको भी आप एक F-16 दे दीजिएगा कि मुजाहिदीन क्यों इतना मेहनत करे, अब तुम F-16 यूज करो। आप जवाब दे एक एक करके, मैं सुनना चाहता हूं। मैं एक एक करके जवाब देता हूं, पर आपको टीवी से निकाल देंगे अगर सारे जवाब। कोई बात नहीं, आप उसका आप नहीं